Welcome back. Well, despite the bulldozer model being questioned in the Supreme Court, it looks like there's no end to it. The South Delhi Municipal Corporation Mayor Mukesh Suryan, along with other officials, carried out an inspection drive in the Jaitpuri area of South Delhi today. Speaking exclusively with Times Now about his inspection drive in the area, Mukesh Suryan said that the drive is after they received complaints about illegal encroachments. He also stated that they are doing the inspection drive, after which a few areas will be demarcated and then bulldozers would be run on the illegal encroachments. We are at Jaipur, which is known as Jaipur Part 2, and after Jahangir Puri, now the politics over demolition drive in specific areas has started. And as you have just seen, that this area on the riverbed of Jaipur, which has been situated over the period of few years, has many number of new mosques and religious places which is also coming out. Now the South Delhi mayor, who is also talking about these kind of new RWAs being a self-proclaimed RWAs being coming up, and illegal capturing of the land, which will be coming under the purview of the SDMC bulldozer, is certainly triggering a much bigger political controversy. This area, which developed over the period of time, was supposed to take the clearance from the civic authorities, but that did not happen. And now the SDMC is talking about that they will be using the bulldozers on this area if at all needed. We have just walked a few meters and then you can see another mosque board is situated here. There are several illegal construction and colonies which has developed here over the period of few time period, and which is certainly going to come under the radar of the municipal corporation. But in the meanwhile, this particular demolition drive, which is expected to start anytime soon, will be questioned by other parties, because members of the Mandatory Committee stay here. What the people have been saying, that there are other areas in the capital also, why that is not being targeted. But SDMC is very much determined that all those illegal immigrants and who have captured this piece of land will be thrown back from here using the bulldozers. नए घर बन रहे हैं वो आपके निशाने पे होंगे या जो पहले से बने हुए घर? वो नहीं, जो लोगों ने अतिक्रमण किया, जो लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, और जो खासकर जो हमारे दिल्ली और देश के वासी नहीं है, उनको हम हर तरह से कब्जा मुक्त कराने का काम करेंगे। शाहीन बाग भी एक मुद्दा है, क्या शाहीन बाग की तरफ भी एमसीडी का बुलडोजर बढ़ेगा? शाहीन बाग आप दिखाएंगे ये क्या इलीगल इंक्रोचमेंट था? यहाँ पे ये पूरा इलीगल इंक्रोचमेंट था। इसको जबरदस्ती यहाँ के जो विधायक है उनके द्वारा इस पे कब्जा किया जा रहा था किसी विशेष के नाम पे, लेकिन ये एमसीडी ने कार्रवाई की, इसको गिराने का काम किया है। बुलडोजर की जरूरत जहाँ पड़ेगी वहीं बुलडोजर चलेगा, जहाँ बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। जहाँ वैसे अगर इंक्रोचमेंट हटाना तो उस तरीके से हटाएंगे, लेकिन जहाँ बुलडोजर चलाना है, अगर 1 चलाना, 2 चलाने, 3 चलाने या 10 चलाने, तो वो भी चलाएंगे। 400 लोग सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ रहे हैं। 400 लोग का लीगल ओपिनियन जो आएगा कोर्ट का वो हम मानेंगे, लेकिन बाकी लोग अवैध हैं। ये तो उसको भी देखना चाहिए कि जमीन किसकी है, सरकारी है कि गैर सरकारी है। पीएम उदय योजना के अंदर 1731 कॉलोनी हैं, उनको चाहे ओ जोन हो, चाहे गो जोन हो, चाहे कोई जोन हो, उनको कोई छेड़ नहीं रहा। देखो ऐसा है जी, ये सीए एनआरसी में ये सारे कार्यक्रम हुए हैं, और जब पुलिस डिप्लॉयमेंट नहीं मिलती, पुलिस के पास बहुत काम है, जब पुलिस मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं। निगम हर समय कार्रवाई करता है, आप निगम से पूछ लो। Well, despite the mounting criticism, the BJP has maintained that only illegally built structures will be targeted in the demolition drive. शाहीन बाग में हो या मदनपुर खादर में हो, जल्दी उन पर बहुत तेजी से कार्रवाई। देखिए, हमने जहांगीरपुरी कार्रवाई की, निगम का बुलडोजर चला, वहां पर हिंदू मुसलमान सबके ऊपर चला। तो ये जो लोग जो एक चश्मे से देख रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या रहें, दिल्ली के अमन चैन खराब करें, दिल्ली में दंगे करें। वो ये चाहते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को हटाया जाए, और फिर किसी का भी अतिक्रमण हो उसको भी हटाया जाए। देखिए, आप जल्दी होगी, 1-2 हफ्ते में तो हो जाएगी। आप देखते जाइए, बहुत तेजी से होगी। Protests also broke out, with many alleging that this is the BJP's way of targeting just a few people. देखिए, सीधी सी बात है, लोगों के घर पे नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनके घर तोड़ने पहुंच रहे हैं।
ये तो आज से पहले भी पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी है। कहीं होटल का मामला है, कहीं हाउस होल्ड इंडस्ट्री का मामला, सब जगह नोटिस भेज के उगाही करी जा रही है। इनके लोग उगाही करने पहुंच रहे हैं, मोटे मोटे पैसे की मांग कर रहे हैं। तो ये अवैध निर्माण जब पहले से हो रखा तो आज आग क्यों खुली? पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के अंदर है, पिछले 15 सालों से सोए हुए थे ये। इनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपकी बात अवैध निर्माण नहीं, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, पूरी दिल्ली को परेशान कर रहे हैं। चाहे अवैध निर्माण की बात आप ले लो, चाहे आप लेंटर की बात ले लो, ये हर तरीके से तंग कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे। नहीं, हम यहीं अभी हमारे नेताजी आगे दुर्गेश पाठक जी खड़े हुए हैं, हम उनके साथ हैं। पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। हम बैरिकेटर नहीं तोड़ेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको करेंगे। एमसीडी ने जो दिल्ली को लूटा है, उसके बाद अब बिल्डोजर के डर से लोगों को डराया जा रहा है। 15 साल में याद नहीं आया उनको? 15 साल में जो अवैध निर्माण हुए हैं, जो खमंचे बने हैं, वो याद नहीं आया उनको? आज याद आ रहा है जब उनका शासन एमसीडी से खत्म हो रहा है, जब याद आ रहा है। दिल्ली को डराया जा रहा है। दिल्ली के लोगों का काम धंधा चौपट वैसे ही हुआ पड़ा है, रोजगार नहीं है। इस समय पर मंदिर को तोड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी श्रीनिवासपुरी के अंदर अभी उन्होंने नोटिस लगाए थे। अभी तो जनता सुरक्षित नहीं है, भगवान भी इन्होंने सुरक्षित नहीं। ये सरकारी जमीन नहीं है, ये खरीदी हुई जमीन है, ये खेती की जमीन है। ये हमने खरीद के हमारे घर बनाए गए, ये सरकारी जमीन नहीं है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, हुआ भी है तो जो नक्शे के बाहर जो भी एरिया उसे अतिक्रमण से हटाया गया, ना कि अंदर का एरिया। और यहाँ पर कभी कुछ 20 साल में कभी कुछ नहीं हुआ इस एरिया में। आज की डेट में सब आके कह रहे हैं कि अवैध है। ऐसे कैसे? कोर्ट में गया था, हम लोग को जीते हैं। हम लोग 550 मीटर दूर है, जमुना से 550 मीटर दूर है। कोई कार्रवाई हुई है क्या? कार्रवाई हुई है, जमुना से 550 मीटर दूर उधर जितने भी बसे थे उधर तोड़ा गया है। हाँ, 550 मीटर हमारा अंडर में है। मैम ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ हम पे सब पक्की वो है, कागज है। एक हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं, कोई बांग्लादेशी और कोई रोहिंग्या नहीं रह रहा। हाँ, यूपी बिहार के लोग रह रहे हैं और सब मिल बांट के रह रहे हैं। जहांगीरपुरी में दंगा हुआ तो बिल्डोजर तरह, यहाँ दंगा नहीं होता। यहाँ रामनवमी भी निकलती है और मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है। गरीब लोगों का आशियाना उजड़ जाएगा, इससे क्या फायदा? बहुत साल बाद ये जगह है, लेकिन ये कॉलोनी और भी पुरानी है। विश्वकर्मा कॉलोनी और भी पुरानी है और ये तो करीब 20 साल हो गए हैं। अनलीगल तो नहीं है मैम, ये सब किसान से जगह खरीदी हुई है, कोई अनलीगल नहीं है। लेकिन अब वही है, राजनीति है।